All right. So you guys are already in the meeting, right? मतलब अभी participants की list धीरे-धीरे बढ़ रही है. So I think it is. नहीं, somehow this tablet जिससे मैं ये write करता हूँ on the screen that has developed this problem बीच-बीच में it stops responding and then only when I reboot it and then I have to reboot the some software problem. I'll have to figure out what the problem is. All right. Anyways, coming back. So जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे that under low pressure conditions and under high pressure conditions, van der Waals equation is giving these results of Z which are in line with the experimental observation that under low pressure conditions Z is less than 1 and under high pressure conditions Z is more than 1. ठीक है. अब यहाँ पर नोटिस करना, जैसा मैं तुम्हें कह रहा था यश, दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस मैंने आपको बताया था दैट Z लेस देन 1, ठीक है. Z लेस देन 1 मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे डोमिनेट करेंगे. एंड ये अट्रैक्टिव फोर्सेस किस में फीचर हो रहे हैं? दे आर गेटिंग फीचर्ड इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, द van der Waals पैरामीटर A, ठीक है. Whereas under high pressure conditions, ठीक है, under high pressure conditions we are seeing that Z is greater than 1, ठीक है. एंड इसको हमने समझा था from the point of view of repulsive forces being dominant. Now ये repulsive forces हमें किस में फीचर होते हुए दिख रहे हैं? They are featuring in the factor B, ठीक है. So this kind of brings in an important point to note that in van der Waals equation, ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं van der Waals equation, ठीक है, wherein we talk about attractive forces, ठीक है, between molecules, right? क्योंकि जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था to begin with लास्ट क्लास में, हम लोगों ने यही बोला था that there are these attractive forces between the molecules which we are trying to model in form of an equation. However, there are repulsive forces also. अब वो repulsive forces किस फॉर्म में फीचर हो रहे हैं हमारे लिए? They are actually featuring in the van der Waals parameter, van der Waals factor B, ठीक है. So B you can say represents volume correction, ठीक है, as well as repulsive forces between gas molecules, ठीक है. So what we are trying to say is that under high pressure conditions, ठीक है, under high pressure conditions क्या हो रहा है? वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, ठीक है. वॉल्यूम बहुत कम हो गया है तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, they are confined in a very small region, ठीक है, as compared to general observation that we have about gases. And in this scenario these gas particles have repulsive forces dominant among them, ठीक है. And that is something which we can see in form of this parameter B, which is also something that we described for volume correction. And that also makes a lot of sense here because volume of the container के कंपैरिजन में जो ये एक्चुअल पार्टिकल्स है उनका साइज अब सिग्निफिकेंट हो गया है, ठीक है. इट इज नॉट समथिंग वेयर यू आर अंडर लो प्रेशर कंडीशंस एंड इट इज क्वाइट रिलैक्स्ड, ठीक है. हाँ, राइट यश, अभी समझ में आया तुम्हें तुम्हारा डाउट? ऑलराइट. हाँ, सो मैं एक बार क्विकली रीआइटरेट कर देता हूँ जो मैंने पॉइंट बताया था दैट ये जो B था, ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने B के बारे में कितना सा पढ़ा था? सिर्फ इतना. in our last class का discussion we spoke that B
represents volume correction. ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको B के बारे में एक और important aspect समझा रहा हूँ, that B also is a representative of repulsive forces between gases. ठीक है, how you can understand it, because from van der Waals equation under high pressure conditions we get this simplified version that Z is equal to 1 plus PV by RT. Right, so greater the value of B, greater would be the repulsive forces amongst gas molecules. ठीक है, ये समझ में आया आर्यन आपको? Anything particular you would want to ask? All right, now under very low pressure conditions देखना, ठीक है, जहाँ पे मैंने मॉडरेट या हाई टेम्परेचर कंडीशन के बारे में बात करी है, तो यहाँ पर सिचुएशन कैसा है, प्रेशर लो है एंड टेम्परेचर भी हाई है. ठीक है, बोथ ऑफ दीज वुड पॉइंट आउट towards a greater size of the vessel. ठीक है, as compared to actual particles. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो particles हैं इनका साइज नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल. तो हम लोग NB का टर्म भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू V. ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट वी आर अंडर वेरी लो प्रेशर कंडीशंस. P छोटा है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल p एंड कॉम्प्लीमेंटिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये जो V का टर्म है in denominator this becomes quite high, and especially V square would make this overall term a n square by V square again negligible as compared to P. Okay, so this equation kind of gets simplified to PV is equal to nRT, suggesting a real gas showing ideal behavior under such conditions, under low pressure, very low pressure and high temperature conditions. इसको आपको जैसे मैंने बताया आप इंट्यूटिवली भी समझ सकते हो. ठीक है, आइडियल गैस के क्या दो अजम्पशंस थे? एक अजम्पशन था दैट एक्चुअल पार्टिकल्स के बीच का साइज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. दैट वाज वन. एंड सेकंड वाज दैट देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. Now under these conditions of very low pressure and high temperature, what is happening is that the volume of the system is quite high and actual particles ka interaction is not really happening because these molecules are quite widespread in the system. And because of high temperature and high kinetic energy, they are just whizzing past each other, not interacting much with each other. So that kind of makes this ideal gas assumption to be valid under these conditions of very low pressure and high temperature. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था when it comes to the P versus V graph. ठीक है, under high pressure conditions positive deviation, low pressure conditions negative deviation, and under very very low pressure conditions we have Z equal to 1. एक तो ये ग्राफ था, as well as this graph is also an explanation of the same. As you can notice x axis पर P है, तो under very low pressure conditions Z is approaching 1. ठीक है, ये समझ में आया आपको? All right. हाँ, so यश का डाउट है अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशंस there will be more collisions amongst molecules. So that is absolutely all right, Yash, because what we are trying to say here is we are not saying collisions nahi happen karenge. What we are saying is that these molecules, they are kind of whizzing past each other. Okay, they are going quite fast, with each other. They are undergoing collisions, but they are not really getting that opportunity for the attractive forces to play a role and make that impact on these particles because of the greater speeds at which the molecules are colliding and moving past each other. Like you can kind of visualize or understand it in this way that let's say there is what you can say,
there is an object which exerts an attractive force on a moving by particle, ठीक है, and because of which attractive force की वजह से like इसका motion influence होता है, ठीक है, maybe it undergoes a deflection, ठीक है, इस तरीके से deflect हो जाता होगा. However, if this object is going at a really high speed, ठीक है, as compared to the previous case, then the deflection might not be that prominent. ठीक है, so this is kind of one way of trying to understand it. The bigger reason behind this is, as I said, that under high temperature and low pressure, both these conditions, the volume becomes much higher. Okay, and that is what is resulting in, you can say, this ideal kind of behavior depicted by a real gas. ठीक है, तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस जो हम लोगों को ग्राफिकली देखने को मिल रही थी, दिस इज वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट. ठीक है, नाउ इफ यू आस्क मी in terms of the mathematical accuracy of van der Waals equation, ठीक है, जैसे ये जो simplified formula है अपने z के 1 plus PV by RT under high pressure conditions and z is equal to 1 minus A upon Vm by RT, A upon Vm RT, are these very sound? The answer will be, well, not really. ठीक है, these explanations are of more importance to us right now. ठीक है, the numerical results which are given by van der Waals equation, they are good, first guess, they are good attempts towards understanding this non ideality. ठीक है, however इनकी accuracy इतनी ज़्यादा नहीं रहती है. ठीक है, it is not one of the most accurate versions of a real gas equation, and this is what something which I was talking about in the beginning जब हम लोगों ने real gas का discussion start किया था, that these gases, this equation, this van der Waals equation is not one of the most advanced real gas equations, but yes, it is the simplest one that we have in our syllabus to help understand the real gas behavior. ठीक है, तो ये तीन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आपको समझ में आई. ठीक है, हाउ z वर्सेस p का एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड बाय van der Waals इक्वेशन. इसमें किसी को कुछ डाउट है? Anything you would want to ask or understand? ठीक है, इस पे क्वेश्चंस एंड ऑल कैसे बनेंगे, कैसा डिस्कशन होगा, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा. ठीक है, बट जस्ट वांटेड टू गेट अ फर्स्ट हैंड impression of how you are able to connect the two, the experimental observation and the van der Waals equation, trying to validate it. All right, then यश का एक डाउट आ रहा है again, that why repulsive forces are related with the volume term. नहीं यश, this is not something which was what we started with. ठीक है, conceptually जब हम लोगों ने van der Waals equation डेवलप करा था, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, the derivation of van der Waals equation that we did in the last class, we did not start by taking into account the repulsive forces. ठीक है, हम लोगों ने यही बोला था that we need to correct volume and we need to correct pressure. ठीक है, जब pressure correction की बात हो रही थी, we had talked about attractive forces, ठीक है, present amongst gas molecules, and that is what we did our correction for. What I am trying to say is that जब हम start attractive forces से करते हैं, तो जो तुमको doubt आया था कि सर आपने तो van der Waals equation में assumption लिया कि attractive forces हैं, बट आपने पिछली क्लास में हमको बोला था, ठीक है, इन दिस 22 अक्टूबर वाला क्लास, इन द लास्ट क्लास ओनली यू टोल्ड अस दैट देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड देयर आर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट अंडर सर्टेन कंडीशंस फॉर अ रियल गैस. देन ये रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है, van der Waals इक्वेशन में कहाँ फीचर हो रहे हैं? So that is what I'm trying to tell you, that we did not start van der Waals equation by assuming
both attractive and repulsive forces. We assumed attractive forces only. ये repulsive forces feature हो रहे हैं, ठीक है, by the mathematical nature of the equation, ये feature हो रहे हैं in this factor B, which was a volume correction factor, जिसमें ये repulsive forces हमारे लिए फीचर हो रहे हैं. एंड इसको मैंने समझाने के लिए आपको एक इंट्यूटिव एग्जांपल भी यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी है, दैट अंडर दीज हाई प्रेशर कंडीशंस, जहाँ पर वॉल्यूम काफी कम हो गया है, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स काफी क्लोज आ चुके हैं एज कंपेयर टू व्हाट दे वर in a low pressure conditions, and because these particles are very close to each other, the nucleus का repulsion is actually dominating. ठीक है, अभी समझ में आया आपको? All right. Now, with this, let me take some questions. Okay, trying to help you understand इसमें किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, स्पेशली द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस व्हिच आर देयर, ठीक है. ऑल्दो ये हमने बस अभी इंट्रोडक्शन ही देखा है, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन ऑफ van der Waals equation or real gases, but yeah, it will certainly be helpful in answering certain basic questions. ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हो गया under, where did that question go? Give me one moment. So this is one or more than one type of question, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, बट वन और मोर देन वन टाइप है, ठीक है. मैं आगे भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में. ठीक है, इसमें ऑब्जर्व करना, यहाँ पर ये Z वर्सेस P का ग्राफ दिया है फॉर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, ठीक है. ये A, B, C इस टाइप के ग्राफ्स आपको दिए हैं यहाँ पर, राइट. तो इसमें अब नोटिस करना, ये जो A वाला ग्राफ है, ठीक है, दिस इज समथिंग जहाँ पर Z इज मोर देन वन ओनली, ठीक है. तो इसके लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है दैट फॉर गैस A, ठीक है, A is 0. When they are saying A is 0, what they are saying is that A is neglected and its dependence on pressure is linear at all pressures. Okay, this is something of a correct statement, because when you try to get this understanding from van der Waals equation, तो ये कैसा था, ठीक है, गैस A का behavior, Z was 1 plus PV by RT, right? So you can see that Z versus P का dependence कैसा है, linear ही हो गया in that nature, ठीक है. Now for gas B, ठीक है, B is equal to 0, ठीक है, that is what is trying to say, that B can be neglected, ठीक है, and its dependence on P is linear at all pressures. Now this is something which you would have understood, ये Z is equal to 1 minus A upon RT Vm, ठीक है, ये इस तरीके से ये B वाले रीजन का एक्सप्रेशन आता था, ठीक है. एंड नाउ, ठीक है, ये मैं अभी आपको थोड़े टाइम में सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जब हम
थोड़ी देर में अभी बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, दैट ये ऑल प्रेशर वाला एस्पेक्ट इसको गलत बना देता है, बिकॉज इवेंचुअली, ठीक है, इफ यू कीप ऑन गोइंग इन द हाई प्रेशर रीजन, ये ग्राफ वापस से ऐसे ऊपर उठ जाता है, ठीक है, अंदर हाई प्रेशर कंडीशंस अगेन रिपल्सिव फोर्सेस का नेचर डोमिनेट करेगा ही सही, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट इसका वैलिड था, दैट फॉर गैस बी, ठीक है, यू कैन इग्नोर द बी पैरामीटर ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, because as you would have simplified the z, it comes out to be 1 minus a upon RTVM, and its dependence on p, it comes out to be not linear for all pressure conditions. Yahan par it is something which you can see comes out to be a negative slope region, but eventually it's going to change, ठीक है। Then ये a and d कैसे निकाले जाते हैं वो, ठीक है, वो एक्चुअली ये मिनिमा वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ऑफ द कर्व आर एक्चुअली काइंड ऑफ सॉल्व्ड फॉर, ठीक है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बेसिकली रहते हैं, तो एक मिनिमा वाला पॉइंट और एक ये z इक्वल टू 1 वाला पॉइंट, इन ये डेटा पॉइंट से a और b का वैल्यू कंप्यूट किया जाता है। दिस इज समथिंग विच इज द वे इन विच a and b आर कंप्यूटेड फॉर रियल गैसेस, and under high pressure the slope is positive for all real gases. So that is something which we observe, that under high pressure conditions ये repulsive forces dominate करने लग जाते हैं, and these graphs go in this positive slope region, z greater than 1 वाला region, ठीक है। तो this was one example, ठीक है, of trying to help you understand कि questions इस केस में they come of subjective nature, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क में ट्राई करने के लिए, अभी I'm not putting it over here, but trying to help you understand that numerical से ज़्यादा, ठीक है, रियल गैसेस का conceptual understanding develop करना crucial है, ठीक है। So that is something which will be really important for you to get a good grip on. Now यहाँ पर अब मैंने आपको Z का वेरिएशन विद प्रेशर बताया है, ठीक है, कि गिवन टेम्परेचर कंडीशन पर Z कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। नाउ आई वुड वांट टू टॉक अबाउट हाउ Z इज गोइंग टू वेरी विद टेम्परेचर, ठीक है, बट दैट वेरिएशन विद टेम्परेचर इज नॉट समथिंग विच इज quite straightforward, ठीक है, does not come quite evidently in the van der Waals equation that we have in front of us, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस van der Waals equation को थोड़ा सा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करेंगे, एंड इस तरीके से करेंगे that it gives us an information of how z is going to vary with t comes clear to us, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं विरियल फॉर्म ऑफ van der Waals इक्वेशन, ठीक है। अब अगेन ध्यान से नोटिस करना, डू नॉट ट्राई टू थिंक कि ये मैं कैसे सोचूंगा, ठीक है, या मैं कैसे सोचूंगी, मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू टू थिंक ऑन दिस लाइन कि आप ये डेरिवेशन खुद से कैसे सोच सकते थे, नॉट रियली, ठीक है। व्हाट यू शुड फोकस ऑन हियर इज trying to understand that how this mathematical manipulation is done to modify van der Waals equation and understand वेरिएशन ऑफ z विद टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक कॉल्ड एज विरियल फॉर्म ऑफ van der Waals इक्वेशन, ठीक है। अभी विरियल फॉर्म ऑफ van der Waals इक्वेशन आपके सामने कैसा रहेगा यहाँ पे नोटिस करना। विरियल फॉर्म इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एनी वेरिएबल, ठीक है, एज अ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड बिहाइंड इट, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना समझना। लेट्स से देयर आर टू वेरिएबल्स y एंड x, ठीक है, एंड मैं आपको बोल रहा हूँ दैट आई एम गिविंग यू एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है, एंड उसमें व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज डू दैट एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, एज मेनी टाइम्स एज यू रिक्वायर, ठीक है, एंड गेट द डेटा पॉइंट्स कि फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ x what will be the certain values of y, okay, and I give you that experiment to run, and what you do is you kind of do that experiment say
20 टाइम्स, ठीक है, एंड आपके 20 डेटा पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो आप उन 20 डेटा पॉइंट्स को, ठीक है, प्लॉट कर दोगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से आपके ये 20 डेटा पॉइंट्स प्लॉट हो गए, ठीक है। नाउ if I ask you to describe the mathematical relationship between y and x, so what you can choose to do is you can start by writing a virial form of y in terms of x. What does that mean? It means that you write y as a power series expansion of x. You write y is equal to a plus bx plus cx square plus dx cube and so on so forth. कब तक? जितने एक्सपेरिमेंटल डेटा पॉइंट्स आपने बनाए हैं, ठीक है। तो लेट्स से आपने कितना बोला था, मैंने 20 डेटा पॉइंट्स तैयार किए हैं, ठीक है। तो 20 कौन सा अल्फाबेट होगा? विच अल्फाबेट विल बी 20? एस टी यू टी टी आ जाएगा, हाँ राइट। सो टी एक्स की पावर 19 तक आप जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर 20, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये मैं एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, 20 डेटा पॉइंट्स, यू कुड हैव डन 50 डेटा पॉइंट्स, आई डोंट माइंड, ठीक है। आपने 20 डेटा पॉइंट्स लिए एंड 20 डेटा पॉइंट्स का आपने यहाँ पर कलेक्शन तैयार कर लिया कि एक्स और वाई की क्या क्या करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। अब मैं उनका बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप आपको निकालने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, ठीक है। You will put those 20 data points in this equation, ठीक है। आप पहला डेटा पॉइंट डालोगे, x और y की वैल्यू डालोगे, तो आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप दूसरा डेटा पॉइंट डालोगे, ठीक है, आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएंगी। इस तरीके से आपकी 20 इक्वेशंस तैयार हो जाएंगी, ठीक है, विद 20 वेरिएबल्स ए बी सी डी टिल टी, ठीक है। 20 डेटा पॉइंट्स, 20 इक्वेशंस, ठीक है, और सब लीनियर इक्वेशंस ही हैं, तो थोड़ा सा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का खेल वगैरह करना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ी मैथ लगेगी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू सब्सटीट्यूशन इफ यू वांट, ठीक है, बट दैट विल टेक अ मच लॉन्गर टाइम, बट यू शुड गेट ए बी सी डी इन सबकी वैल्यूज, ठीक है। वंस यू गेट दोज वैल्यूज, व्हाट यू हैव is a very good relationship between y and x that quite accurately covers the range of data set in which you have done the experiment. तो कल को अगर आपको कोई प्रिडिक्शन भी करना रहा, ठीक है, कि एक गिवन x के लिए क्या y का वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में डाल दो एंड यू शुड गेट अ रियली गुड गेस। यू कैन एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट दैट आल्सो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज विरियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर मान लो यहाँ पर y और x के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, y और x के बीच का रिलेशनशिप प्राइमरीली स्ट्रेट लाइन जैसा आ रहा होता, ठीक है, प्राइमरीली स्ट्रेट लाइन जैसा आ रहा होता, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं c के आगे के, c एंड c के आगे के, ये कोफिशिएंट्स c d अप टिल t, ये सब बहुत वेरी वेरी स्मॉल आ जाते हैं, ठीक है, एंड यू वुड हैव नेचुरली ended up with an almost linear relationship between y and x, ठीक है। तो इस तरीके से विरियल फॉर्म जो बोला जाता है, क्या है विरियल फॉर्म? इट इज अ मैथमेटिकल टूल, इट्स अ मैथमेटिकल वे ऑफ ट्राइंग टू डिस्क्राइब वन वेरिएबल एज अ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि विरियल फॉर्म क्या है? क्यों, इसमें कहाँ मतलब डाउट था? वेयर डिड यू गेट स्टक? थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने आपको समझाया।
मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, दोबारा ध्यान से समझना कि वेरिएबल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैथमेटिकल वर्ड्स को ध्यान में रखना, व्हाट डू आई मीन बाय वेरिएबल फॉर्म, ठीक है। वेरिएबल फॉर्म is a way, a mathematical way of describing one variable, ठीक है, as a power series expansion of other variable, ठीक है। so यहाँ पर y is to be described as a power series expansion of x, ठीक है। now the reason why this is something that we have come up with is if you have a data set, ठीक है, in which, ठीक है, मान लो आपका एक कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप है y और x के बीच में, ठीक है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप इज समथिंग व्हिच कैन बी गवर्न्ड बाय अ पावर सीरीज, ठीक है। जैसे आप नोटिस करोगे y और x का अगर लीनियर रिलेशनशिप होता है तो स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। y और x का अगर क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप रहता है तो ये इस तरीके का एक पैराबोला रहता है, ठीक है, अपवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड फेसिंग, ठीक है। y और x के बीच में अगर क्यूबिक रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। दैट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y x के 3 रूट आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो इट इज देन, अगर 4th डिग्री का रिलेशनशिप होगा तो इट माइट हैव दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स की पावर 4, राइट, तो ये इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ रहेगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट if you have two variables y and x, ठीक है, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तक? Have you guys studied quadratic equations chapter yet in mathematics or not? तो ये क्वाड्रेटिक में ये y वर्सेस x का ग्राफ ऐसा होता है, ये इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये पैराबोला का ग्राफ क्वाड्रेटिक में बताया तो होगा ही सही। नहीं नहीं, डिटेल्स तो मैं भी नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। मैं भी इतना ही पूछ रहा हूँ कि बस इतना ही आता है ना आपको, पैराबोला का ग्राफ ऐसा हो सकता है या फिर डाउनवर्ड फेसिंग हो सकता है, बस इतना तो पता है ना। ठीक है, तो अब नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। मान लो, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, let's say I'll create a or pose a situation in front of you, ठीक है, that as a teacher, ठीक है, I gave a task to Yash asking कि y and x के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकाल के बताओ, एंड आई गेव हिम एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसमें आप अगर x का वैल्यू कुछ रखते हो तो y का वैल्यू कुछ आ जाएगा, ठीक है। नाउ मुझे तो पहले से आंसर पता था, मुझे आंसर पता था कि y x का फंक्शन रहेगा, ठीक है, एंड ये क्वाड्रेटिक फंक्शन रहेगा,
ठीक है, मुझे ये पहले से ही पता था, बट यश को नहीं पता था ये। ठीक है, तो मैंने यश से पूछा कि यश आप y और x के बीच का मुझे रिलेशनशिप निकाल के बताओ, कैसा रहना चाहिए। ठीक है, लीनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, क्यूबिक रहेगा, राइट, कैसा रिलेशनशिप रहेगा, यू ट्राई एंड गिव एन आंसर टू मी। And for that I am not giving you the mathematical analysis, I am just giving you experiment, experimental setup। तो आप एक्सपेरिमेंट करो और फिर मुझे उससे बताओ। तो यश जाएगा, यश एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, ये एक वैल्यू के लिए y का कुछ वैल्यू आ जाएगा, दूसरे x के लिए दूसरा कुछ y का वैल्यू आ जाएगा, तीसरे के लिए तीसरा कुछ आ जाएगा, चौथे के लिए चौथा कुछ आ जाएगा। इस तरीके से यश डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके ये काइंड ऑफ एक ग्राफ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, नाउ अब इस ग्राफ में मान लो यश ने कुछ 20, ठीक है, कुछ 20 एक्सपेरिमेंट्स रन किए, 20x की वैल्यूज के लिए 20y की वैल्यूज निकाली। ठीक है, सो 20 डेटा पॉइंट्स हो गए। तो यश अब क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है, आई नीड टू डिस्क्राइब एन एक्यूरेट mathematical relationship based on these 20 data points that I have got। तो यश बोलेगा let me write y as a power series expansion of x। ठीक है, I will write y as a plus bx plus cx square plus dx cube। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना किस ऑर्डर का ये रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये। ठीक है, मैंने तो बस ठीक है, इनफैक्ट यश तो बोलेगा कि मैंने तो ग्राफ भी प्लॉट करके नहीं देखा। ठीक है, मैंने तो यश को ग्राफ का टूल भी नहीं दिया। ठीक है, मैंने तो यश को बोला कि ये टेबल है, ठीक है, y और x की, एंड ये 20 डेटा पॉइंट्स x और y के आप जस्ट डेटा पॉइंट्स मैंने दे दिए और आप मुझे रिलेशनशिप निकाल के बताओ। तो यश क्या करेगा, ये 20 डेटा पॉइंट्स के लिए ये वेरियल फॉर्म की इक्वेशन लिखेगा, कहाँ तक, टिल x की पावर 19 तक। ठीक है, y टिल x की पावर 19 तक, बिकॉज इसमें ठीक है 20 वेरिएबल्स आ जाएंगे। कौन से वेरिएबल्स रहेंगे, ए बी सी डी टिल टी, ये 20 वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट डेटा सेट जो है वो यश यहाँ पे डालेगा, तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर दूसरा डेटा सेट यश यहाँ पे डालेगा। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज डालेगा बेसिकली। तो ये ए बी सी डी के टर्म्स में कितनी 20 इक्वेशंस तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तैयार हो जाएंगी। नाउ डेफिनेटली, हाँ ठीक है, अब जैसे पार्थ को आंसर डाउट आ रहा है कि 20 से कम वेरिएबल्स क्यों नहीं ले सकता, 20 से कम वेरिएबल्स भी ले ले। ठीक है, तो अगर मान लो यश यही मान लेता, ठीक है, इतने ही वेरिएबल ले लेता, यश बोलता कि मैं तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मान लेता हूँ और फिर देखता हूँ। ठीक है, तो व्हाट वुड बी हैपनिंग इज दैट यश ने स्टार्टिंग में ही गलत अजम्पशन ले लिया। he would have oversimplified the problem, he would have assumed कि ये तो लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, and based on it he would try to answer, बट ये गलत हो गया ना, उसने स्टार्टिंग में ओवर सिंप्लीफिकेशन ले लिया। ठीक है, सो नाउ अंडरस्टैंड कि जितने डेटा पॉइंट्स उतने वेरिएबल्स लेने से व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द एक्यूरेसी ऑफ आवर इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज जितने मतलब यहां पर मैं एक्यूरेटली y को x के टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकता हूं, आई वुड रिक्वायर एज मेनी एज पॉसिबल। ठीक है, एज मेनी एज पॉसिबल टर्म्स है। ठीक है, बट मेरे को बेस्ट द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इन द वर्ल्ड मिल जाएगा अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स ले लूंगा तो। ठीक है, बट द थिंग इज दैट आई एम लिमिटेड बाय माय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। मैंने 20 डेटा पॉइंट्स ही कलेक्ट करे हैं, तो 20 डेटा पॉइंट्स में जो मुझे बेस्ट ऑब्जर्वेशन मिलेगी, ठीक है, उसमें मैं 20 वेरिएबल्स ही मान सकता हूं। ठीक है, तो दैट विल बी द बेस्ट ऑब्जर्वेशन फॉर मी। सो यहां पर मैंने 20 डेटा पॉइंट्स
के हिसाब से 20 इक्वेशंस बना ली और उनसे ABCD को सॉल्व कर लिया. तो वंस आई गेट दोज ABCDs, ठीक है, I will have a pretty good relationship between y and x, which then Yash would answer, and tell me, sir, this is the relationship that I have got between y and x. ठीक है. एंड यश के उस रिलेशनशिप को मैं जब एनालाइज करूंगा, ठीक है, और मुझे तो पता है कि मैंने तो जो डेटा पॉइंट्स दिए थे या मैंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है, तो यश के आंसर में, ठीक है, इफ एकदम परफेक्ट कैलकुलेशंस करी होंगी एक्सपेरिमेंटली यश ने, तो यश के ऑटोमेटिकली डी के आगे के डेटा पॉइंट्स डी ई ये सब जीरो आ जाएंगे. या फिर अगर यश ने थोड़ा भी एरर किया होगा, ठीक है, कैलकुलेशन में अगर एकदम एक्यूरेसी से भी नहीं गया होगा, थोड़ा भी एरर कर दिया होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी. तो भी ये जो डी का वैल्यू रहेगा, ई का वैल्यू रहेगा, टी का वैल्यू रहेगा, ये सब नेग्लिजिबल आ जाएंगे. ये सब बहुत छोटे छोटे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे जिनको अगर हम नेग्लेक्ट भी कर दें तो हमारे कैलकुलेशंस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा. एंड देन यश वुड कम अप एंड से कि सर बाय लुकिंग एट दिस आई थिंक इट विल बी अ क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप. अभी समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश है दैट ये वेरियल फॉर्म है. ठीक है, दिस इज वेरियल फॉर्म ऑफ, it's a mathematical tool. ठीक है, it's a mathematical tool of describing one variable in terms of other. ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर रियल गैस की सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे नोटिस करना, वेरियल फॉर्म इज अ मैथमेटिकल वे which we are using here to describe Z, ठीक है, compressibility factor as a power series expansion of either P or V. ठीक है, तो मैं Z को P के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, A डैश प्लस B डैश P प्लस C डैश P स्क्वायर D डैश P क्यूब, ऐसे चलता जाएगा. ठीक है, कहाँ तक, जहां तक के डेटा पॉइंट्स मेरे पास में रहेंगे, ठीक है, वहां तक मैं इसको लेके जाना चाहूंगा सो एज टू गेट द मोस्ट एक्यूरेट वर्जन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन Z एंड P. ठीक है, और I can write Z as a power series expansion of V also. ठीक है, एंड यहाँ पर I will be writing Z as A plus B by Vm plus C by Vm square plus D by Vm cube and so on so forth. ठीक है, इसमें Vm को मैंने डिनोमिनेटर में क्यों लिया है, बिकॉज रिलेशनशिप ऑफ Z and V is kind of inverse in nature. ठीक है, ये चीज मुझे एक्सपेरिमेंटल डेटा पॉइंट से समझ में आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर द मोर यूज्ड वर्जन, ये मैंने स्टार लगा रखा है इसलिए क्योंकि द मोर यूज्ड वर्जन ऑफ वेरियल फॉर्म इज डिस्क्राइबिंग Z इन फॉर्म ऑफ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ V. ठीक है, स्पेशली Vm मोलर वॉल्यूम के फॉर्म. ठीक है, वेयर ये ABCD क्या होते हैं, दीज ABCD आर कॉल्ड एज द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरियल इक्वेशन व्हिच आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. ठीक है, ABCD एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करे जाते हैं. अब नोटिस करना, जब रियल गैस के लिए, ठीक है, जब रियल गैस के लिए ये मेजरमेंट करे गए, ठीक है, जब रियल गैस के लिए ये एक्सपेरिमेंटली ABCD इनकी वेरियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकाली गई, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई. ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन क्या आई, दैट ये जो फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट है, ए को क्या बोलेंगे, फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट, बी को सेकंड, सी को थर्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये जो फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट है, इट कम्स आउट टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ठीक है, भले आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे चले जाओ, ये ए का वैल्यू कंसिस्टेंटली सेम ही आएगा. ठीक है, बट बाकी जो वेरियल कोफिशिएंट्स थे बी सी डी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट आ रहे थे. ठीक है, सो दिस वाज एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ द वेरियल इक्वेशन. ठीक है, नाउ अब हम वंडरवॉल्स इक्वेशन, ठीक है, वंडरवॉल्स इक्वेशन को वेरियल फॉर्म में लेकर आना चाहेंगे एंड देखना चाहेंगे कि कैसा रिप्रेजेंटेशन आ रहा है Z का. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, व्हाट आई वुड वांट टू डू इज आई वुड वांट टू मॉडिफाई वंडरवॉल्स इक्वेशन इनटू वेरियल फॉर्म.
ये कैसे करेंगे, इसके पीछे थोड़ा मैथ लगेगा, ठीक है. अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेरिवेशन देन like go right ahead and understand this. If you are not interested in derivation, like आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये derivation कैसे जा रहा है, तो right now you can keep it on hold, ठीक है. You don't need to worry much about it because as such ये derivation बहुत difficult नहीं है, ठीक है. ये derivation काफी easy है, but maybe because आप क्योंकि first time देख रहे होगे तो आपको थोड़ा सा इसमें एक sense of you know अनफेमिलियरिटी होगा कि ये लाइक आया कैसे. तो यहां पर ऑब्जर्व करना हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन. तो सबसे पहले वॉन डेर वाल इक्वेशन को 1 मोल के लिए लिख देंगे. तो n को 1 से रिप्लेस कर देंगे एंड v को vm से रिप्लेस कर देंगे. देन ये vm माइनस b को मैं राइट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा, ठीक है. जो लेफ्ट हैंड पे vm माइनस b था इसको मैं राइट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा. इसको मैं RT अपॉन vm माइनस b लिख दूंगा, ठीक है. एंड देन ये ब्रैकेट में जो p प्लस a अपॉन vm स्क्वायर था तो ये a अपॉन vm स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है. तो यहाँ तक का मैनिपुलेशन आई थिंक सबको समझ में आ रहा है. देयर इज नो प्रॉब्लम. ऑल राइट. अब मैं दोनों तरफ vm बाय RT से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है. ऐसा क्यों करूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है. यू जस्ट ऑब्जर्व कि ऐसा करने से क्या हो रहा है. तो इफ आई मल्टीप्लाई pvm by RT on both the sides, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे z क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ पर मेरा सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा. मैं vm by RT से एंड vm by RT से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस तरीके से दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड पर भी आ जाएंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिख दिया z, ठीक है. एंड ये जो फर्स्ट टर्म था ऑन द राइट हैंड साइड इसको मैंने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया. आई रोट इट एज 1 अपॉन 1 माइनस b by vm, ठीक है. अब यहां पर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैं यूज करने जा रहा हूं विच आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा, ठीक है. सो जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैं अब यूज करने जा रहा हूं दैट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है. फॉर x लेस देन 1 यू कैन राइट 1 अपॉन 1 माइनस x as 1 plus x square plus x cube plus x की power 4 till infinity. Have you ever seen this before? Is there anyone who has seen this before? किसी ने भी देखा? हाँ राइट पूर्णा, राइट यश, ठीक है. आप लोग शायद अभी KVPY के लिए पढ़ रहे होगे, उसमें आप लोगों ने शायद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा होगा, राइट. वहीं पे पढ़ा दिया होगा. KVPY में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा FB में देखा था, ठीक है. तो आप लोगों को पढ़ाएंगे भी सही है बाद में, ठीक है. हाउएवर मैं यहाँ पर इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है. ध्यान से नोटिस करना. इसका प्रूफ बहुत सिंपल है. इट इज नॉट समथिंग विच इज अ डिफिकल्ट प्रूफ, ठीक है. सो यहाँ पर नोटिस करना. लेट मी कॉल दिस राइट हैंड साइड एज s. 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4 टिल, ठीक है, x की पावर n, ठीक है. इसको मैं s बोल देता हूँ. अब मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है. अब अगर मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x की पावर 4 टिल x की पावर n प्लस 1 और उसके पहले x की पावर n होगा, है ना. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, ठीक है. सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम अनदर, ठीक है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, s कॉमन हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है. ये s 1 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे नोटिस करना ये x इस x को काट देगा, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर को कट कर देगा, x क्यूब को कट कर देगा, x की पावर 4 x की पावर 4 को कट कर देगा, x की पावर n को कट कर देगा.
तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर n+1, ये इतना बचेगा। तो इससे s कितना आ गया, s आ गया 1 माइनस एक्स की पावर n+1 अपॉन 1 माइनस एक्स। राइट, इतना मैथ समझ में आया? यहां तक में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब नोटिस करना, अगर x 1 से छोटा है, ठीक है, एंड n अप्रोचेज इंफिनिटी, ठीक है, तो ये टर्म का क्या होता है? अगर x 1 से छोटा है, ठीक है, से x 0.1 है, और n अप्रोचेज इंफिनिटी, मान लो x 999 है, ठीक है, सॉरी x नहीं, सॉरी n 999 है, तो ये क्या हो जाएगा? कभी किसी ने करके देखा है कैलकुलेटर में 0.1 की पावर 9999 क्या होगा? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 करते जाओगे तो क्या आ जाएगा? 0.000000 जाते जाओ, ठीक है। इज इट समथिंग विच इज नेग्लिजिबल? इज इट समथिंग दैट कैन बी नेग्लेक्टेड? तो आई कैन जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हेयर एंड से दैट द सम इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, विच इज व्हाट आई wrote on the left hand side. समझ में आया? ठीक है, तो कैसे ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को पावर सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा जा रहा है? ऑल राइट, ठीक है। सो ये मैथमेटिकल प्रूफ आपको कराएंगे इन अ चैप्टर कॉल्ड एज सीक्वेंस एंड सीरीज। ये एक चैप्टर आएगा अभी आपका, आई थिंक क्वाड्रेटिक के बाद ही आ जाएगा। काफी इजी चैप्टर होता है एंड काफी इंटरेस्टिंग होता है। सो नाउ विद दिस प्रूफ, अब नोटिस करना, ये जो b बाय वी एम है, ये भी लेस देन 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि b क्या था? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और vm was the volume of the vessel for 1 mole of the gas। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम तो vm से छोटा ही होगा ना एनी डे, तो ये चीज 1 से छोटी है। तो इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, जैसे मैंने 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को ऐसा एक्सपेंशन लिखा, वैसे मैं 1 अपॉन 1 माइनस बी बाई वी एम को ऐसे एक्सपेंशन लिख सकता हूँ। राइट, यहाँ तक किसी को गड़बड़ नहीं है? ठीक है, जैसे मैंने 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखा, वैसे मैं 1 अपॉन 1 माइनस बी बाई वी एम का एक्सपेंशन लिख दूंगा। जस्ट एक्स एंड बी बाई वी एम को मैंने रिप्लेस कर दिया है। राइट, अब मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो नोटिस करना, ये क्या हो जाएगा? ये z इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब। कब तक? टिल इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। एंड ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, ठीक है, माइनस ए अपॉन वी एम आर टी, ये एज इट इज रहेगा। तो ये वी एम वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को मैं क्लब कर देता हूँ, क्योंकि इनके दोनों में सेम डिनोमिनेटर में 1 बाई वी एम है। ठीक है, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस b माइनस a बाय आर टी इंटू 1 बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम क्यूब प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? दिस विल बी द विरियल फॉर्म ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। समझ में आया? ठीक है, मैंने क्या बोला था? विरियल फॉर्म z एज अ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ v, राइट, एंड दिस इज व्हाट आई हैव गॉट हियर, z as a power series expansion of v। ठीक है, फ्रॉम वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, इसमें आप नोटिस करोगे ये फर्स्ट कोएफिशिएंट कैसा आ रहा है? ये फर्स्ट कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ रहा है। वेरी गुड। ये सेकंड कोएफिशिएंट कैसा आ रहा है? इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अपने लिखा था ना, that the first virial coefficient is temperature independent। ठीक है, whereas the second, third and so on so forth are going to be temperature dependent। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि सेकंड वाला कोफिशिएंट टेम्परेचर डिपेंडेंट आ रहा है। ठीक है, बट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, विच इज यू कैन से अ ड्रॉबैक ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि वैन डर वाल्स इक्वेशन परफेक्ट नहीं है ना।
वॉन डर वाल इक्वेशन के भी कुछ ड्रॉबैक्स है. So this is, you can say, one of the drawbacks associated with van der Waals equation. ठीक है, but we are still able to get the virial form from van der Waals equation, which is quite good, at least for the first and the second coefficient. ठीक है, ये समझ में आया आपको? Is this something clear? Now, अब नोटिस करना, ठीक है, by doing this, ठीक है, by doing this mathematical manipulation of van der Waal equation, by writing it in Villiers form, what we are going to do is we are going to understand, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, how z is going to vary with temperature. That is what our objective was. तो यहाँ पर नोटिस करना, we'll work towards that objective now. ठीक है, and working towards that objective, we encounter a concept called as Boyle's temperature. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फिनोमेना है. अगेन पहले इसका एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे एंड देन आई विल डिस्क्राइब इट यूजिंग van der Waals इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, बॉयल्स टेम्परेचर क्या है? फॉर अ रियल गैस इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड that there exists a particular temperature for a particular gas, ठीक है, at which the gas tends to behave ideally over a range of low pressure condition. ठीक है, this is something which is an observation for real gases, ठीक है, that under particular temperatures, ठीक है, at particular temperature, ठीक है, the gas tends to behave like an ideal gas, ठीक है, under low pressure conditions. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल CO2 गैस है, ठीक है, तो CO2 गैस के लिए अराउंड 725 केल्विन, ठीक है, CO2 गैस के लिए 725 केल्विन is that temperature जिसपे CO2 gas tends to behave like an ideal gas over a range of low pressure conditions. मतलब प्रेशर अगर 1 atm 2 atm 10 atm ऐसा कुछ रहेगा, तो उसमें उस रेंज ऑफ प्रेशर में at that temperature this real gas is going to show ideal behavior. ठीक है, हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन गैस के लिए अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कंडीशन है. ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉयल्स टेम्परेचर. रफ डेटा पॉइंट बता रहा हूं मैं, आपको याद नहीं रखने हैं डेटा पॉइंट, जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया दैट नाइट्रोजन गैस के लिए अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज दैट टेम्परेचर जहां पर ओवर अ रेंज ऑफ लो प्रेशर कंडीशन द गैस टेंड्स टू बिहेव आइडियली. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग विच इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. अब नोटिस करना, दिस ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम आर van der Waals इक्वेशन. ये जो van der Waals इक्वेशन का हमने विरियल फॉर्म लिखा है, ये भी हमें बता के देगा कैसे, आप नोटिस करना. ठीक है, सो अ गुड रियल गैस इक्वेशन लाइक van der Waals इक्वेशन शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट दिस बिहेवियर व्हिच इट इज. ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना किस तरीके से कर रही है, ये हमने अभी जस्ट नोटिस करा था. ठीक है, वी जस्ट नोटिस दिस विरियल फॉर्म ऑफ van der Waals इक्वेशन. अब इसमें नोटिस करना, अगर लो प्रेशर कंडीशन है, लो प्रेशर कंडीशन मतलब वॉल्यूम हाई है, तो वॉल्यूम हाई है तो ये डिनोमिनेटर में vm स्क्वायर vm क्यूब इन सबको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इन टर्म्स को मैंने हटा दिया. ठीक है, बिकॉज अंडर लो प्रेशर कंडीशन दीज vm स्क्वायर vm क्यूब इन डिनोमिनेटर मेक दीज टर्म्स नेग्लिजिबल. तो क्या बचेगा मेरे पास में, z will come out to be 1 plus b minus a by rt into 1 by vm. Now if you notice, अगर टेम्परेचर a upon dr है, ठीक है, इफ टेम्परेचर का वैल्यू a upon dr है, तो ये कोफिशिएंट 0 हो जाएगा.
और ये कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो z का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रिडिक्शन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर फ्रॉम van der Waals equation, that for a gas if the temperature is equal to a upon br, ठीक है, a and b these are the features of the gas itself, ठीक है। जैसे N2 गैस का a और N2 गैस का b मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा और से टेम्परेचर निकालूंगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पर गैस मेरा z का वैल्यू 1 शो करेगा ओवर अ रेंज ऑफ लो प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। सो यहाँ पर ग्राफिकली अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूंगा तो ये कैसा दिखेगा, z वर्सेस p का ग्राफ कैसा रहेगा अंडर लो प्रेशर कंडीशंस, इट विल बी कोइंसाइडिंग विद z इक्वल टू 1 का लाइन, ठीक है, अंडर लो प्रेशर कंडीशंस, ये जरूरी है। हाई प्रेशर पे जाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर पे फिर ये वाला अजम्पशन करेक्ट नहीं रहा ना, ये मैं नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा, vm स्क्वायर vm क्यूब ये सब मैं नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये सब ऐड होते जाएंगे z में और मेरा वैल्यू फिर 1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करो ना यश, कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हें मैथमेटिकली दिख नहीं रहा, यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू a अपॉन br दिखूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। If I put temperature as a upon br, won't this term become 0? Right? So z will become equal to 1. ठीक है। So this is something which you can again understand is coming from, or this is again you can say validation of real gas equation, van der Waals equation, that it is experimentally validating this Boyle's temperature, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर आप थोड़ा और डेप्थ में जाओगे, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, अब अगर आप और डेप्थ में जाओगे, ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स मोर, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, बट आई एम एट अ वेरी क्रूशियल जंक्चर, आई डोंट वांट टू क्लोज द लेक्चर राइट नाउ। यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर मैं टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा रखूंगा, ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट था b माइनस ए बाई आर टी, ठीक है, ये जो सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट था यहाँ पर b माइनस ए बाई आर टी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज मोर देन बॉयल्स टेम्परेचर, इट्स मोर देन a अपॉन बी आर, ठीक है, इफ इट्स मोर देन a अपॉन बी आर तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो z का वैल्यू मोर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी b माइनस ए बाई आर टी, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट था ये लेस देन 1 हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा तो z का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट लेस देन 0 हो जाएगा तो z विल बिकम 1 माइनस समथिंग, इट विल बिकम लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना that this will kind of help you understand that how z is going to vary with temperature. तो अगर गैस बॉयल्स टेम्परेचर पर है, ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस है तो कैसा रहेगा ग्राफ, इट विल बी काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल, कब तक, लो प्रेशर रीजन में, ठीक है। फिर इवेंचुअली तो ऊपर जाएगा ही सही, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक वाले टर्म्स नेग्लिजिबल नहीं बचेंगे, ये सब ऐड होते जाएंगे z में और 1 से ज्यादा वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा है गैस का, ठीक है, गैस का बॉयल्स टेम्परेचर, जैसे नाइट्रोजन का बॉयल्स टेम्परेचर मैंने आपको बताया 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये ग्राफ मैं नाइट्रोजन के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लॉट कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन का ग्राफ कैसा आएगा, नाइट्रोजन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, इट विल बी मोर देन 1 ऑलवेज, ठीक है। और अगर, ठीक है, मैं लेट्स से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, विच इज लेसर देन द बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, विच इज से बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन वाज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये ग्राफ कैसा होगा, नीचे की तरफ रहेगा, z विल बी लेस देन 1, कब तक, लो प्रेशर रीजन में ही रहेगा, ठीक है। इवेंचुअली तो फिर बढ़ ही जाएगा ना, क्यों, बिकॉज ये वाले क्वाड्रेटिक क्यूबिक वाले टर्म्स इसमें एड अप होते जाएंगे, लो प्रेशर में ये बाकी सब टर्म्स नेग्लिजिबल थे, बाद में ये टर्म्स एड अप होते जाएंगे,
तो आपको z का वेरिएशन विद टेम्परेचर समझ में आया, एंड हाउ बॉइल्स टेम्परेचर प्लेज अ important role in this understanding. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं भी आ रहा है तो भी बताओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट यूजिंग एन ऑल्टरनेट अप्रोच. ऑल राइट, बाकी लोगों को नहीं आया, सिर्फ एक रोमिल है इसको आया. चलो मैं इससे पूछता हूँ, अपनी टॉपर जो है कहाँ गई, पूर्णा. तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? लेट मी टेक यू एज द बेंचमार्क. तुम्हें नहीं आएगा तो फिर बाकी लोगों को तो कैसे भी आएगा. फिर एक ऋग्वेद को ले लेता हूँ मैं. ऋग्वेद को बहुत डाउट्स आ देते हैं. ऋग्वेद, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? या वो भाग गया है कि नहीं है वो? है ना? कहाँ गया ऋग्वेद? कैन यू हियर मी? ठीक है. सो नहीं समझ में आया, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से वापस से थोड़ा सा पिकअप करता हूँ. ठीक है, आप लोग एक बार नोट्स लिखोगे, ठीक है, साथ ही साथ में, तो एक बार आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. फिर मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिकअप करूँगा. ठीक है, विल स्टार्ट विद दिस बॉइल्स टेम्परेचर वाला पार्ट ओनली. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन. अभी के लिए तो फिर ब्रेक करते हैं, आपका नेक्स्ट क्लास भी रहेगा, सो यू विल गेट लेट फॉर दैट. ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइज, टेक केयर.